سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ دو یہاں خواتین ہیں تو خواتین ہوتے ہوئے ہم کوکنگ کی بات نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہمارا کچن کا سیگمنٹ سٹارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ریسیپی جو ہے ہم آپ کو بنا کے سکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کھانا بنانے کا کتنا شوق ہے، کھانا کھانے کا کتنا شوق ہے۔ بینا آپ کی طرف بڑھیں گے، چونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوکنگ کا بڑا شوق ہے، اب یہ بات سچ ہے؟ کس حد تک سچ ہے یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ ہاں جی، مجھے بہت شوق ہے کوکنگ کا، اور کئی دفعہ بلکہ میں جب سیٹ پہ ہوتی ہوں یا اپنی ٹیم کے لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بنانا، میں انہیں آفر کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں، ہم نے باہر سے کہیں سے کچھ نہیں کھانا، نہ ہوٹل ووٹل کا، آپ بس پرووائڈ کریں، اگر نہ وہاں پہ نا آس پاس کسی نہ کسی گھر سے ارینج کر لیں گے اور بڑے مزے کا طریقے سے کر کے، کیونکہ اچھا ہم آپ کو اپنے کچن کے لیے بول سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی آ کے ہمیں کچن میں ٹائم دیں، کیونکہ جن کو کھانا بنانے کا شوق ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں، ذائقہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اصل میں بہت چھوٹی عمر سے میں نے اس طرف، اور پھر ہمارے وقتوں میں ہوم اکنامکس بڑا ایک اچھا سبجیکٹ ہوتا تھا۔ بہت اچھا، یہ میں نے خود بھی پڑھا ہے، بہت اچھا ہوتا تھا، بڑیوں کے کپڑے بنانے ہیں، کھانا بنانا ہے، پریکٹیکل ایسا کر کے لانا ہے۔ تو ہمارے تو خیر اس وقت میں وہ کوکنگ کا بھی ہوتا تھا، ہم اسکول میں لے کے جاتے تھے اسپیشل، وہ کوکنگ کرتی تھی، اور کمپٹیشن، اور صرف یہی کمپٹیشن پکانے کا نہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کے نمبر ملتے، ہاں پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمیشہ ہی ٹاپ پہ رہتی تھی، اور مجھے اپنا بڑا اور مجھے زیادہ اس وجہ سے میں نے اس کو سیکھا کہ میری ٹیچر خوش ہوتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنی ٹیچر کو خوش کروں، اور ان کی وہ مجھے پیار سے میں کہتی تھی کہ میں ان کی پان کی ڈبی بھی بڑی اچھی صاف کرتی تھی، اور مجھے بڑا پیار بھی کرتی تھی، اور الحمدللہ میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے، میں کہتی ہوں الحمدللہ ہر حال میں ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ ہمارے استادوں کی ہی محبتیں، اور کہ ان کے سکھائے ہوئے استاد سکھاتے ہیں، ادب اداب بڑے چھوٹے کی، ہر ایک کی رسپیکٹ عزت، یہ ہم نے اپنے ان استادوں سے سیکھی ہوئی ہے۔ آج کل بچے بے شک تھوڑا سا محسوس کر جاتے ہیں استاد کی بات کو، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، استاد کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور وہ ہم سیکھتے ہیں، ہمیں ماں باپ سے اتنا سیکھنے کا موقع نہیں ملتا جتنا ہم اپنے استاد سے سیکھتے ہیں۔ ہمیں بولنا نہیں آتا ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کہاں کب کیا بولنا ہے، ہمیں لفظ پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہمیں وہ سکھاتے ہیں، تو ان کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا ان کے اوپر یہ رتبہ آیا تھا جب انہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ کے اپنے آغاز کیا اس رتبے کا، تو الحمدللہ کہ استادوں کی عزت بہت کرنی چاہیے، تو اس سے بڑے نصیب اچھے ہوتے ہیں ان سے بڑا۔ کھانا بنانے کا شوق ہے یا کھانا کھانے کا؟ یار میں تو بنانے میں میری طبیعت بھر جاتی ہے۔ اچھا یہ بات ہوتی ہے کہ جو کوکنگ کرتا ہوتا ہے نا وہ اتنا کھاتا نہیں ہے، وہ بناتے وہ خوشبو سے اس کا پیٹ ایسا ہی ہے میری، یہ کوکنگ کرنے والے کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی میں یا اپنے گھر کے ان کو جتنا ہو سکے ان کو پریزنٹیشن دے کھائے، اس کے بعد اس کو اس وقت مزہ آ جاتا ہے جب ان کی طرف سے اپریشیٹ ملتا ہے، بہت مزے کا تھا ماما۔ ہاں بالکل، کیا میں جب آپ بنا کے ہمیں کھلائیں گی پھر میں کہوں گی کیا زبردست بنا ہے۔ اچھا آج سے آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، چونکہ آپ بھی فیلڈ میں رہتی ہیں تو ٹائم کم ہی ملتا ہے، لیکن آج کل تو فری ہیں، فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی، فیلڈ میں آنے سے پہلے بھی آپ کو کھانا بنانے کا شوق تھا؟ بچپن سے تقریباً میں نے کھانا بنانا 6 سال کی عمر سے شروع کیا تھا، کیونکہ میری مدر جو ہے وہ زیادہ تر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، پھر ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور 6 سال کی عمر میں نے سب سے پہلے آٹا گوندھا، اور وہ کیسے گوندھا کہ اس میں آٹا ڈالا اور سارا پانی ڈال دیا، پھر آٹا یوں پانی یوں۔ تو اپنی امی سے میں نے کہا اب اس کا کیا کروں، کہتے ہیں اب کیا کیا ہے، میں نے کہا یہ دیکھ لو، کہتی ہیں اچھا ایسا کرو اس میں آٹا اور ڈال دو، پھر وہ میں نے آٹا ڈال کے اس کو ٹھیک کیا، پھر میں نے کہا پانی کا، انہوں نے کہا پانی بس اب ہاتھوں کو لگا کے اس کو سیٹ کرنا، پھر ایسے سب کرنا، پھر مجھے سب سے پہلے انہوں نے بتایا ایسے پیاز کاٹنا ہے، اس کو پہلے براؤن کرتے ہیں، ہر ڈش میں پہلے پیاز کو براؤن کرنا، اس کے بعد ٹماٹر اس کے اندر ڈال دینے، اس کے بعد آپ نارملی جیسے چاہو۔ جب بات کرتے ہیں تو ہماری آج کل کی اگر جو دیکھیں جنریشن ہے، جو ہماری لڑکیاں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کھانے سے پہلے ہم نے پیاز کو کیا کلر دینا ہے، ہمیں اس طرح جو ہے وہ کھانا پکانا اسٹارٹ کرنا۔ میں بہت ساری ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں کہ میں نے گھر گئی یا ایسا کوئی ایسے ہوئے ہیں ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے کہ میں نے کھانا بنانا ان کا دیکھا ہے،
उनको ये नहीं पता कि प्याज कच्ची प्याज ऊपर तैर रही होती है और आधे आधे साबुत टमाटर वो और टमाटर ऊपर साबुत तैर रहे और होते हैं। बस उसमें एक मसाले का डिब्बा सिर्फ डालने से वो समझती शायद इससे कुकिंग हो जानी है। नहीं, बेसिक टेस्ट जो होता है वो आपके अपने हाथ का होता हाथ है। का होता है। और ना तरीका भी बाजारी होता है मसाले बनाने का। डालने के बावजूद भी किन लोगों के हाथ का टेस्ट नहीं आता। मैं बताती हूँ कि टेस्ट की जो मेन एक्चुअल वजह है वो क्या होती है कि आप प्रॉपर उसको सिर्फ टाइम दोगे। कैसे कि आपने जब प्याज को ब्राउन किया, साथ में उसमें टमाटर डाल दिए, जब बिल्कुल वो पेस्ट बन गया, फिर उसके बाद आप अदरक लहसुन पेस्ट, नमक मिर्च जो भी आप पसंद कर दो, उसको डालने के बाद आप उसको इतना भूनो कि जब आपको लगे कि मसाला आपका एक साइड पे हो गया, ऑयल बिल्कुल बाहर निकल साइड पे हो गया, गया, बिल्कुल। समझो कि देन आपका मसाला तैयार है। खाने कोई भी आप डिश ले रहे, कोई भी आप सब्जी बनाए, चिकन बनाए, कोई भी डिश बनाए, जब तक आप अच्छे से उसको भूनेंगे नहीं, फ्राई नहीं करेंगे, तब तक जायका नहीं आता। लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, चिकन बना रही हैं, अच्छे से फ्राई नहीं करेंगी, वो कच्चा कच्चा गोश्त, उसका जायका स्मेल भी आती है उसके अंदर। सब्जी पका रही है, अच्छे से उसको भूनेंगी नहीं, वही कच्ची कच्ची, वो बस 2-4 दफा उसको घुमाया, पानी लगा दिया। तो अपनी अम्मी से मैंने कहा अब इसका क्या करूं? कहते हैं अब क्या किया है? मैंने कहा ये देख लो। कहती हैं अच्छा ऐसा करो, इसमें आटा और डाल दो। फिर वो मैंने आटा डाल के उसको ठीक किया। फिर मैंने कहा पानी का, उन्होंने कहा पानी बस अब हाथों को लगा के इसको सेट करना, फिर ऐसे सब करना। फिर मुझे सबसे पहले उन्होंने बताया ऐसे प्याज काटना है, इसको पहले ब्राउन करते हैं। हर डिश में पहले प्याज को ब्राउन करना, उसके बाद टमाटर उसके अंदर डाल देने, उसके बाद आप नॉर्मली जैसे चाहो। जब बात करते हैं तो हमारी आजकल की अगर जो देखें जनरेशन है, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको नहीं पता कि खाने से पहले हमने प्याज को क्या कलर देना है, हमें किस तरह जो है वो खाना पकाना स्टार्ट करना है। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ कि मैंने इवन घर गई या इस तरह कोई ऐसे हुए हैं टाइम उनके साथ गुजरा है कि मैंने खाना बनाना उनका देखा है, उनको ये नहीं पता कि प्याज कच्ची प्याज ऊपर तैर रही होती है और आधे आधे साबुत टमाटर वो और टमाटर ऊपर साबुत तैर रहे और होते हैं। बस उसमें एक मसाले का डिब्बा सिर्फ डालने से वो समझती शायद इससे कुकिंग हो जानी है। नहीं, बेसिक टेस्ट जो होता है वो आपके अपने हाथ का हाथ होता का है। होता है। और ना तरीका भी बाजारी होता है मसाले बनाने का। डालने के बावजूद भी किन लोगों के हाथ का टेस्ट नहीं आता। मैं बताती हूँ कि टेस्ट की जो मेन एक्चुअल वजह है वो क्या होती है कि आप प्रॉपर उसको सिर्फ टाइम दोगे। कैसे कि आपने जब प्याज को ब्राउन किया, साथ में उसमें टमाटर डाल दिए, जब बिल्कुल वो पेस्ट बन गया, फिर उसके बाद आप अदरक लहसुन पेस्ट, नमक मिर्च जो भी आप पसंद कर दो, उसको डालने के बाद आप उसको इतना भूनो कि जब आपको लगे कि मसाला आपका एक साइड पे हो गया, ऑयल बिल्कुल बाहर निकल साइड पे हो गया, गया, बिल्कुल। समझो कि देन आपका मसाला तैयार है। खाने कोई भी आप डिश ले रहे, कोई भी आप सब्जी बनाए, चिकन बनाए, कोई भी डिश बनाए, जब तक आप अच्छे से उसको भूनेंगे नहीं, फ्राई नहीं करेंगे, तब तक जायका नहीं आता। लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, चिकन बना रही हैं, अच्छे से फ्राई नहीं करेंगी, वो कच्चा कच्चा गोश्त, उसका जायका स्मेल भी आती है उसके अंदर। सब्जी पका रही है, अच्छे से उसको भूनेंगी नहीं, वही कच्ची कच्ची, वो बस 2-4 दफा उसको घुमाया, पानी लगा दिया। तो वो यही वजह है कि जब आप उसको, जब आपको लगे कि मसाला सब अलग हो गया, ऑयल निकल के उसको अलग छोड़ चुका है, तो हल्का सा पानी डाल के फिर उसे हल्का हल्का भूने। उसके बाद आपने कुछ भी जो ऐड करना है वो ऐड करें। ऐड करने के तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कुछ सेकंड तक आप उसको भी भूने, ताकि उसके अंदर जो ऑयल वगैरह मसाला उसके अंदर जज्ब हो जाए। उसका अपना पानी या उसकी चिकन या गोश्त वगैरह है, उसकी स्मेल वगैरह वो सब खत्म हो जाए, अच्छे से उसको भूने। अच्छा, तो खाना खाने का भी शौक? बहुत ज़्यादा। अब मुझे तो माशाल्लाह इतनी भूख लगती है, नाश्ते का टाइम है लेकिन मुझे भूख लग रही है। नाश्ते के बिल्कुल नाश्ता करने के 2 घंटे बाद 3 बार फिर भूख लग जाएगी। इवन कि मैंने घर में मैंने अक्सर ना, मैं हम लोग लाइट नाश्ता करने वाले नहीं हैं, हम पंजाब के लोग, हम पराठा मलाई और बम सा। मुझे पराठा बहुत पसंद है, पराठा और मलाई, अभी हम और वो भी देसी घी वाला मुझे बहुत यकीन चकोर सा पराठा। बल्कि मैं वो यही बात कर रही थी कि बच्चियां नहीं सीख पाती जैसे आप कह रहे थे, लेकिन मैं कह रही इन सिचुएशन में बच्चों ने सीख रही हैं, यूँ सीखती है। मैं हैरान हूँ, तो मैं बल्कि तारीफ करती हूँ, मैं क्या बिल्कुल। अब मेरी खुद की बेटी माशाल्लाह है 12-13 साल की, ठीक है, मैंने उसको 9 साल की उम्र से मैंने उसे कुकिंग सिखाई है। और अब मुझे, मैं बैठ के कुकिंग करके ना इजी होके बैठती हूँ, कोई मेहमान आता है तो हर चीज़ उसने लगानी होती है, और मेरी आंख के इशारे को समझ रही होती है कि क्या चीज़ टेबल पे कम है। कोई लड़की है ना, वो अगर शादी करके डेफिनेटली दूसरे घर से जाना है, वो अपने घर नहीं, माँ बाप के घर तो नहीं सदा रह सकती, लेकिन जब दूसरे घर जाकर उसको कुछ बनाना नहीं आ रहा होता, तो वो जो नाम है ना वो
सिर्फ बाप पे नहीं आता, माँ का माँ का होता है। इसकी माँ ने क्या सिखाया? सिखाए अच्छा, लेकिन मेरी नजर में ना कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो ना सिखाए कि जो अपने बच्चों को तरबियत नहीं देगी। अब बच्चे ना सीखें तो अलग बात है। लेकिन वही बात ना, देखिए कि बच्चों को सिखाने का भी एक तरीका है, ये तरबियत किसके हाथ में? माँ क्या, सबसे पहले दर्शगाह ही माँ है। वही बात ना, ये एक तरीका होता है। आप बच्चों को कहेंगे भाई बस लाड प्यार, हमारा नन्ना, हमारा मुन्ना, हमारी बच्ची, हमारी गुड़िया, नहीं आप काम नहीं करो, आप बैठो आपके सामने, भाई इस तरह वो कैसे सीखेंगे? बिल्कुल, वो हम माँ बाप हमारे हैं जो इस्लाम लेके के- जाएंगे, वो माँ बाप नहीं होंगे, उनका तरीका समझाने का अलग होगा वहाँ उनसे। बनी कोशिश भी करें ना तो नहीं बन सकते उस तरह। बिल्कुल। फिर भी एक झलक उसमें सास ससुर की नजर आती है। अब मैंने अपनी बेटी को समझाया ना, बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं, अगली दफ़ा ऐसे करनी, ठीक है? उसने कहना ओके। अब सास का तरीका क्या होगा, मैं थोड़ा रिएक्ट करके आपको दिखाऊंगी एज ए एक्टर कि हाँ ये क्या किया तुमने, उसने कहना ये अच्छा करो, मैं देखती हूँ कि क्या माँ ने सिखाया। सबसे पहली बात। दूसरी बात कहेंगी अच्छा तुम्हें सोना आता है हर बात पे, अच्छा टीवी देखना आता है, तुम्हें खाना आता है, और हर बात पे सिखाना माँ ने तुम्हें कुछ और नहीं सिखाया था, खाली यही काम सिखा दिया था। अपनी माँ को ये भी कहती है कि शादी भी किसी ऐसे घर में करवा दें कि जहाँ पे सिर्फ नेट हो और तुम हो और सो और बस, ये मतलब इस तरह की ना बातें जो है ना वो मतलब माशरे में मिलती है। हकीकत है। और अपनी बेटी को क्या तरबियत देनी, हाँ सास को जरा ना खींच के रखना। हाँ बात वाकई है कि दूसरों की बेटियां आ जाए ना तो उनके साथ बड़ा कड़वा लहजा रखना, और अपनी बेटी को कहें अपने घर जाके ना खींच कर रखना। लेकिन मैं उन्हें माँ नहीं समझती, वो जालिम होती हैं अपने बच्चों के लिए। उनके साथ माँ का गलत करैक्टर ये है क्योंकि बेटा वो तुम्हारे असल जैसे घर। अब माँ बाप हम थे वैसे ही अब वो तुम्हारे माँ बाप हैं। बिल्कुल। अब जैसे तुमने हमारी खिदमत की, कल उनकी करना, ताकि ना देखो कहने की बात है कि अगर मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की होगी, सास ससुर की, तो मेरी औलाद मेरी करेगी। बिल्कुल। अगर मैंने नाफरमानी की होगी तो 100% मेरी औलाद भी मेरी नाफरमानी करेगी। बिल्कुल, मफाते अमल है, जो आप करेंगे वो आपके साथ आगे आएगा। लेकिन हम उनको अगर आज अच्छी तरबियत देंगे, अच्छा जो आप करें आज कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कल को भी ताड़े ना और बने। एक बात ना महविश, आप उनको देखें कि जिन बच्चियों को बैग से ना मतलब अप्रिशिएट नहीं मिल रहा होता, मतलब कि अगर मैंने फर्स्ट वैसे ही अब वो तुम्हारे माँ बाप हैं। बिल्कुल। अब जैसे तुमने हमारी खिदमत की, कल उनकी करना, ताकि ना देखो कहने की बात है कि अगर मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की होगी, सास ससुर की, तो मेरी औलाद मेरी करेगी। बिल्कुल। अगर मैंने नाफरमानी की होगी तो 100% मेरी औलाद भी मेरी नाफरमानी करेगी। बिल्कुल, मफाते अमल है, जो आप करेंगे वो आपके साथ आगे आएगा। लेकिन हम उनको अगर आज अच्छी तरबियत देंगे, अच्छा जो आप करें आज कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कल को भी ताड़े ना और बने। एक बात ना महविश, आप उनको देखें कि जिन बच्चियों को बैग से ना मतलब अप्रिशिएट नहीं मिल रहा होता, मतलब कि अगर मैंने फर्ज करेंगे कोई बच्ची कहती है वहाँ पे मेरे साथ ये हो रहा है, और वहाँ उसको कहती है कुछ भी हो रहा है लेकिन वो तुम्हारा घर है। बिल्कुल, फिर वो मुझे मत बच्चियां बताओ। बस जाती हैं। आप नोट करेंगे कि अब क्या करूं अब तो, और जो सुन लेते हैं वो तैश में, वो उनको और ज्यादा ना, अच्छा तुम सामान पैक करो, मैं आ रही हूँ, अब ये हाँ, बस रगड़ेंगे, नाक रगड़ के तो लेके जाएंगे। तो वो क्या होता है ना कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। अब वो लड़के को भी लड़की और मिल जाएगी, ठीक है, और शादी लड़की की भी हो जाएगी, लेकिन शादी हमेशा पहली ही शादी होती है। बिल्कुल ऐसे वही बात ना कि ये अगर आपने अपने जो आपकी बेटी है उसका किस्मत आपने खुद बनानी है, उसका नसीब आपने खुद बनाना है, और ये मान बस अपनी तरबियत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल वही कहते हैं ना, लाड प्यार करें वो एक लिमिट में होता है, लेकिन ऐसी चीजों पे आप अगर लाड दिखाएंगे तो फिर ये नहीं रोना कि हाय किस्मत। हमारे अब्बू कहते होते थे हमेशा कि बेटा सोने औलाद को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन आंख जो है वो शेर वाली रखो। ये बात है। और आप देखें हमारे इस्लाम में भी है कि आप बच्चों पे सख्ती का हुक्म दिया गया है, उनको मार के, बल्कि प्यार से नहीं तो फिर डांट के मार तक है कि आप नमाज पढ़ने के भी उनको जो है बिल्कुल 7 साल की उम्र साथ के बाद उसको बच्चे को आप मार सकते हैं कि नमाज पढ़ो। और मैं यही उस दिन भी सुन रही थी कि इस्लाम ने इजाजत दी, क्यों कि इंसान अगर फितरतन वो देखें, अगर एक जानवर है तो वो भी अगर सीधा रास्ते पर नहीं चलता तो उसको भी हमें चलाने के लिए बिल्कुल तो इससे ना समझ खींचते तो फिर मार गए तो रास्ते पे चले। अब बच्चा उसकी समझ पे नहीं है वो चीज़, उसे हम प्यार से कहेंगे समझ जाएंगे, अगर नहीं समझते फिर डांट पे डांट। लेकिन कुछ अगर हालात ऐसे आते हैं तो इस्लाम ने हुक्म दिया है, नफ़ी नहीं है कि हमें अगर हम कहेंगे हम शायद जुल्म कर रहे हैं। अब ये मगरबी तहजीब वाले ज़रा सा कुछ होता है, उनके बच्चे फ़ोन कॉल करते हैं, वो कुछ ना कुछ इश्यूज आके ले आते हैं, तो क्या हुआ कि उन तहजीबों का क्या हाल है, वहाँ पे औरत की उनके रिस्पेक्ट ही नहीं है। औरत की भी नहीं, माँ बाप की भी नहीं। बूढ़े होते हैं तो उनके माँ बाप कहाँ पे चले जाते हैं, ओल्ड होम्स में। जो है हमारे अपने हाथ में चले जी। अभी हमारे चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, इतनी मतलब ऐसे
बातें चल रही होती है ना कि पता नहीं चलता टाइम कैसे भाग जाता है। और स्पेशली खवातीन खवातीन मैंने जैसे बात की 3 खवातीन की बात अच्छा मजे की बात हो, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूं क्योंकि एक ऐसी वो बातें चल रही है ना जो मतलब टॉपिक है ना खींचता चला जाता है। एक मजे की बात इसमें ऐड करूंगी जाते जाते, ऐड कर इस बात में आप मैसेज भी दें। बिल्कुल बात ये मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक किस्सा है कि एक बादशाह ने कहा कि मैं उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा जो मुझे एक सबसे बड़ा झूठ पकड़ा के देगा, कि मतलब कौन सा ऐसा दुनिया में बड़ा झूठ है वो मुझे बता दे। तो सब ने कहा ये है वो है। एक बंदे ने कहा कि 3 औरतें बैठी और बिल्कुल खामोश बैठी। उसने कहा नहीं, इसका जो झूठ है वो परफेक्ट है। Perfect क्यों कि 3 औरतें हों और अकेली बैठे, औरत तो अकेली भी बातें कर रही होती है, किचन में भी कर रही। अच्छा आने दो, आज बताती हूँ उसको, क्योंकि ये फितरत के अंदर है, फितरत बदलती नहीं, आदत बदल जाती है, फितरत चेंज नहीं होती। लेकिन आजकल जो है हमें इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अच्छा अभी ना आप जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैसेज ये है कि इस वक्त अपने आप को बस अल्लाह पाक की तरफ ही रग़बत ज़्यादा से ज़्यादा रखें और दूसरा एहसास करें एक दूसरे का, और जितना हो सकता है अपने अखराजात को भी लिमिटेड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उन्हीं से हम लोग जो किसी से हेल्प हमारी हो सकती है हम कर सकते हैं वो। और दूसरा ये कि अपने आप को भी महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज रखें, अपनी ज़िंदगी भी आसान करें और दूसरों की भी ज़िंदगी आसान करें। अपनी भी ज़िंदगी आसान करें, दूसरों की ज़िंदगी में जो है आसानी जब आप पैदा करते हैं तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना कि आप हमेशा दुआओं में दूसरों को याद रखें। जब आप दूसरों को याद रखेंगे यकीन मानिए आपको अपने लिए हाथ उठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट महविश चौधरी और रेड न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।